Hello students of class 12. So today I am going to start the new chapter, that is determinants. Okay, so it is very much linked to matrices. All we know about the basic concept of matrix. Now we are going to study about determinants. So what are determinants? These are real or complex values. Okay, and what it is used for. So it is used for finding adjoint of a matrix and using it to find inverse of a matrix. So already I have discussed in previous chapter that we can find inverse of matrix. Okay, a matrix is invertible or not, we can easily find the inverse of a matrix using elementary transformation. But here also we can find inverse of a matrix, but the method is different. We can use determinant to find the inverse of a matrix, and the topic I will be discussing later on. So here first of all we have to find the adjoint of a matrix. Okay. Number 2 is finding area of triangle, equation of line and plane. So using determinant we can easily find the area of triangle and the equation of line and plane. Okay, this I am going to discuss in later on in 3D chapter. Okay, equation of plane, that is in 3-dimensional geometry in the second part. Next is number 3, solving system of n linear equations in n unknowns using inverse method. So already in class 10 you know that from class 10 there was a chapter, that is pair of linear equation in two variable. There two equations two equations were given and you need to find the unknowns, that is x and y. Similarly here is another method that is called using inverse method, and we have to use the determinant also. Okay, by using that we can easily find the solution of two linear equations as well as three linear equations as well as n linear equation. But in this particular chapter you have to study up to three linear equation. Okay, so these are some application, we can say these are some application of determinants where determinant can be used. Okay, so here one more thing is important. Here we will use the square matrix only. We have to deal with the square matrix only because determinant can be, we can find the value of determinant for a square matrix only. So we have to study for 2 into 2 matrix and 3 into 3 matrix. That means up to 3 into 3 matrix we have to study. Okay, so let us start the topic. So this is the definition of determinant. Every square matrix A is equal to square bracket Aij, that means the elements of this matrix A, okay, of order n. That means of order n. What is the meaning of this? N into n, that means it is a square matrix, so number of rows is equal to number of column. So overall we can write it as n. Okay, this can be associated to a unique real number or complex number or function known as determinant. That means the value of determinant may be it may be a real number or complex number, okay, or a function, and it is denoted by det dot a or like modulus symbol, but don't confuse with the modulus symbol, that is totally different, and determinant of a, that means this symbol is totally different. Okay, the value is totally different. In modulus we have to take always the absolute value. Okay, that means the negative value becomes positive, but here this symbol is totally different. The way of calculation is also different. Okay, or delta, that means triangle. Okay, this symbol is written for determinant because it is used to find the area of triangle. That's why this symbol can also be used. Okay, so or we can write it as like this. Okay, we have to find the value of this, so this symbol you have to write for determinant, and these are the elements. Okay, elements of a matrix. So there are some notes which I am going to discuss. So next I am going to discuss some notes. See, number 1 is only square matrix have determinant. Okay, that means we need to study only square matrix in this chapter. Okay, next number 2, matrix A is equal to, these are the elements of matrix A, then determinant of A is written as like this. Okay, see the symbol. Okay, what is the difference? Here we are writing the square bracket, but here we are not mentioning, we are not writing the square bracket.
सो जब भी डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉड्यूलस जैसा सिंबल हम लोग को लगाना है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो वैल्यू क्या, वो एक वैल्यू देगा हमको, और वो वैल्यू क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। दैट मीन्स इट मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स, और इट मे बी अ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज नंबर। अगर मैट्रिक्स ए के अंदर में जो एलिमेंट्स है वो अगर नंबर होता है तो डिटर्मिनेंट ए के अंदर में भी हमको क्या मिलेगा, नंबर ही मिलेगा। बट अगर एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स से अगर फंक्शन है, यानी अंदर में tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा ये सब अगर है, तो हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिल सकता है, फंक्शन ही मिलेगा। A matrix cannot be reduced to a number, but a determinant can be reduced to a number. मैट्रिक्स को हम लोग जितना भी ट्रांसफॉर्म करें, चेंज करें, जैसे हमारे पास एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को हमेशा मैट्रिक्स ही मिलता है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नंबर हम लोग को नहीं मिलता है कभी भी। बट डिटर्मिनेंट के केस में जब हम लोग डिटर्मिनेंट को रिड्यूस करेंगे, देन वी गेट अ नंबर। ओके, सो दीज आर सम नोट्स of determinant. Next, how to find the determinant of 2 into 2 matrix and 3 into 3 matrix. कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जब उस मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 into 2 होगा। तो फर्स्ट केस देखो, मैट्रिक्स ए है, उसका एलिमेंट्स ऐसा ही दिखेगा क्योंकि वो 2 into 2 मैट्रिक्स है, तो 4 एलिमेंट्स होगा। तो डिटर्मिनेंट जब लिखेंगे तो ऐसा सिंबल आ जाएगा, ठीक है, मॉड्यूलस जैसा। ऐसा सिंबल आने के बाद उसके बाद हम लोग किस तरह से वैल्यू को फाइंड करते हैं, देखो हमको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, a11 इंटू a22, ओके, माइनस a21 इंटू a12, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करेंगे, स्टार्टिंग यहाँ से होगा, उसके बाद इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस a21 इंटू a12, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा एक सॉल्यूशन, यानी जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमको क्या मिल जाएगा, एक वैल्यू मिलेगा पर्टिकुलर कोई, ठीक है। नेक्स्ट कम टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 होगा वो इस तरह से दिखेगा हम लोग को, ठीक है, उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होगा। सो अभी उसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, देखो यहाँ पे एक मेथड है, जो मेथड का नाम है एक्सपेंशन मेथड, ठीक है, हम लोग को एक्सपैंड करना है। तो तुम लोग ऑलरेडी पहले जैसे तुम लोगों ने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोगों ने सीखा है, तो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, 2 वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो सेम यहाँ पे हम लोग का वही तरीका है। तो वहाँ पे तुम लोग क्या करते हो, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करते हो। तो यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी, सेकेंड कॉलम के अलोंग भी, लेकिन हम लोग को एक ही के अलोंग एक्सपैंड करके वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे एक्सपैंड क्या कर रही हूँ, अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो सबसे पहले आ रहा है, तो फर्स्ट रो के जब अलोंग हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखो फर्स्ट एलिमेंट इज a11, तो जब हम लोग a11 लेंगे उसके आगे हम लोग क्या लिखते हैं, -1, -1 हमेशा ही लिखना है, और -1 का पावर में देखो क्या होगा, जो सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट में क्या नंबर है 1 1, तो दोनों को हमको प्लस करना है उसका पावर में, ठीक है। तो -1 यहाँ पे बेस में हमेशा ही रहेगा, पावर में हम लोग सबस्क्रिप्ट को ऐड करेंगे, जो सबस्क्रिप्ट जो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं उस एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे a11, क्योंकि इस एलिमेंट के लिए लिया है तो ये एलिमेंट को लिखना होगा। उसके बाद देखो क्या करना है, a11 जिस रो में है इस रो को हम लोग को छोड़ देना है, और वो जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी छोड़ देना है। तो ये छोड़ने के बाद जितना एलिमेंट्स हम लोग का बच गया है उस एलिमेंट्स का हमको क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये किसके लिए है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए हम लोग पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से देखना तुम लोग, हम लोग जब फर्स्ट रो के अलोंग फाइंड करेंगे तो हम लोग सभी का डिटर्मिनेंट बारी बारी से निकाल पाएंगे, क्योंकि हम लोग को 2 into 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता ही है, तो हम लोग उसी को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। खाली वे थोड़ा डिफरेंट है, क्या है, उसमें एक एलिमेंट आ जा रहा है ना, हम लोग जिस रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो उस एलिमेंट को हमको जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्लस, प्लस अभी क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम लोग एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 है यहाँ पे, ठीक है, आई एम एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो अभी फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट देखोगे क्या है, सेकेंड एलिमेंट है a12,
ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस -1 का पावर में क्या हो जाएगा, इसका सबस्क्रिप्ट ऐड करोगे 1 + 2, नेक्स्ट हो जाएगा A12। अभी A12 इसी रो में है तो इस रो को तो छोड़ देना है, और वो किस कॉलम में है, वो इस वाला कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो उस सेकंड कॉलम को भी छोड़ देना है हमको। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ने के बाद जितना एलिमेंट बचा है उस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट, यानी देखो A21 A31 नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A23 पीछे में A33, ठीक है, इतना बच गया। और ये तो मालूम ही है तुम लोग को, यहाँ पे हम लोग को वो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना ही है बाहर में, जो एलिमेंट के लिए हम लोग ले रहे हैं उस एलिमेंट को हमको लिखना होगा, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए हम लोग निकाल रहे डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट है हम लोग का रो 1 में A13, तो हम लोग प्लस लिख के फिर से क्या लिखेंगे, -1 टू द पावर, सबस्क्रिप्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है। A13 आ गया, तो A13 लिख लिया, उसके बाद A13 का जो डिटर्मिनेंट है, तो ये हो गया फर्स्ट रो, और कौन सा कॉलम है ये, थर्ड कॉलम, तो इसको हम लोग पूरा को छोड़ देंगे। तो बाकी क्या बचा देखो, A21 A31 A22 A32, ठीक है, इतना सही है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद तुम लोग को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इसके साथ इसका, ठीक है, जैसा हम लोगों ने 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, सिमिलरली इसके लिए फाइंड करेंगे। फाइनली हर एक एलिमेंट के साथ उस नंबर को इनटू कर देंगे, और यहाँ पे देखो ये आएगा हमेशा +1, बिकॉज ये हमेशा इसका पावर क्या है, इवन है, नेगेटिव का पावर इवन होने से पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सिर्फ तुम्हारा इसमें ही हम लोग का नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्ट क्या है, ऐड करने से ऑड है, बाकी A13 में भी क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो इसी में सिर्फ माइनस साइन होगा, तो हमेशा ये टर्म को नहीं लिखने से भी होगा, ऑलरेडी वी नो हम लोग को ये माइनस लिखना है, तो हम लोग इसको माइनस लिखेंगे, और बाकी दोनों के आगे में सिंबल क्या लगाएंगे, प्लस का, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का डिटर्मिनेंट का एक हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। तो जिस तरह से मैंने रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया है, उसी तरह से रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कोई भी रो कॉलम के अलावा हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, और आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा।